کئی بار ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے اور جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہم کرتے چلے جاتے ہیں. بٹ وین وی اسپینڈ ٹائم، ہم خدا کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں تو پھر خدا ہمارے دل میں احساس سے جرم پیدا کرتا ہے یا احساس پیدا کرتا ہے کہ وی آر رانگ اور یا ہم غلط جگہ پر کھڑے ہیں. کئی بار ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، لیکن جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں. میرے عزیزو، یہاں پر بھی جب اس نے وقت گزارا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا سے کہتا ہے کہ خدا تو مجھے برکت دے، میں نے تجھے نہیں جانے دینا ہے. لیکن اس سے پہلے اس کی جو روح ہے یہ مزاحمت کر رہی ہے، اتنی مزاحمت کر رہی ہے کہ صبح ہوگی ہے، مارننگ ہوگی، لگتا ہے کہ یہ بار بار شاید پاؤں پکڑ لیتا ہوگا کہ میں نے تجھے نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ اب اس کو ریولیشن کھل چکا تھا، اس کا مکاشفہ مل چکا تھا. لیکن یہ اس وقت سب کچھ ہوا جب یہ فاتح ہوا ہے. کئی بار ہماری جو پرانی انسانیت ہے یہ ہمارے اندر زور مارتی رہتی ہے، ہمارا جسم زور مارتا رہتا ہے. اس کی ران کو اس لیے چھوا گیا. کل کو یعقوب یہ نہ گمان کر کے میں نے جب پوری رات کشتی کی تھی اس لیے اسی ران کو چھوا گیا تو کہ جانے کہ یہ جو برکت، یہ جو ٹائٹل تجھے ملا ہے تیرے زور سے نہیں ملا ہے. یہ اس لیے تاکہ یہ لنگڑاتا رہے، یہ لنگڑا کر چلے، اس کو پتہ چلے کہ یہ میرا زور نہیں تھا بلکہ یہ خدا کی برکت اس کی زندگی میں تھی. کئی بار میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ شخص، اس کی جو بیک سٹوری تھی، ہسٹری تھی، یہ اتنی اچھی نہیں تھی. اس کے اندر بہت ساری پرابلم تھی، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، خدا نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. کئی بار ہماری کمیوں، کمزوریوں کے باوجود بھی خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے اور اپنے منصوبوں کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے. لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دے، جب ہم اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں پھر وہ ہماری زندگی میں اپنے منصوبوں کو اور اپنی بادشاہ کو میرے عزیزو بھیجتا ہے. پولس رسول بیان کرتے ہیں رومیہ 7:24 میں، ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں اور اس موت کے بدن سے کون مجھے چھڑائے گا. یہ جو 20 سال تھے اس کی زندگی میں، یہ کتنے دیانتداری کے سال نہیں تھے. ان 20 سالوں میں اس کے ماموں نے اس کے ساتھ کئی بار دھوکہ کیا، اس کے ماموں نے کئی بار اس کو چیٹ کیا، اس کے ماموں نے اس کو دکھائی کوئی لڑکی شادی کسی دوسری لڑکی سے کر دی. اس کے ماموں نے اس کے ساتھ روپے پیسے کا ایگریمنٹ اور کیا کچھ اور. کئی بار اس کی مزدوری بدل گئی. تو صرف ماموں ہی ٹرکے نہیں کھیل رہا تھا، بھانجا بھی ساتھ ہی ٹرکے کھیل رہا تھا. اس کا جو بھانجا یعقوب تھا یہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹرکے کھیل رہا تھا. صرف ماموں ہی سارا یہ کچھ پلے نہیں کر رہا تھا بلکہ بھانجے نے بھی ایسی اسکیمیں نکال رکھی تھی کہ جانور پیدا ہوں اسی کے پیدا ہوں. اس نے بھی اگر ماموں دھوکہ دے رہا تھا تو یہ بھی ماموں کو دھوکہ دے رہا تھا. کئی دفعہ ہم ایک دھوکہ نہیں دے رہا تھا، دونوں دھوکہ دے رہے ہیں. کئی بار صرف شوہر ہی دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا ہے، بیوی بھی دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. یہاں پر بھی صرف ماموں ہی اس کے ساتھ ٹرکے نہیں کھیل رہا تھا، بیٹا بھی بھانجا بھی اس کے ساتھ ٹرکے ہی کھیل رہا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی چھڑیاں لگا لیتا تھا، کبھی کچھ کر لیتا تھا تاکہ جو بچے پیدا ہوں، بکریوں کو جو بچے پیدا ہوں یہ اسی کے ہوں تاکہ اس کا مال بڑھتا چل جائے. اور جتنی موٹی اور تازے بکریاں پیدا ہو رہے تھے اس کے ہو رہے تھے اور ماموں کے دبلے اور کمزور ہو رہے تھے.
ये भी ट्रिकी था, ये भी स्कीम में लगा रहा था, मामू भी इसके साथ स्कीम में लगाता था, भांजा भी इसके साथ स्कीम में लगाता था। ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे थे, क्योंकि याकूब का मतलब ही धोखेबाज है। और यहां पर हम देखते हैं पुरानी इंसानियत, हालांकि इसकी जिंदगी में एक तजर्बा हो चुका है, बैतल के मकाम पर इसकी जिंदगी में तजर्बा हुआ है, बैतल के मकाम पर इसने फरिश्तों को देखा है, इसने खुदा की आवाज सुनी, खुदा ने इसके साथ वादे किए कि मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक का खुदा हूं, इससे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। खुदा ने इसके साथ प्रॉमिस किए है, इसने भी खुदा के साथ प्रॉमिस किया है, लेकिन इस प्रॉमिस के बावजूद भी जो 20 साल इसने गुजारे हैं, वो बिल्कुल राइट वे पर ये खुदा के साथ नहीं चला है। उन 20 सालों में ये पूरे का पूरा खुदा के साथ नहीं चला है। हो सकता है ये रोज उठता हो, दुआ करता हो, कुर्बानियां भी करता हो, जो इसको समझ थी, जितनी भी मजहबी रस्मात आती थी वो ये करता होगा, लेकिन उसके बावजूद इसकी जिंदगी में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, इसकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई थी। ये वैसे मजहबी तौर पर सारी चीजें था, इसने फरिश्तों को भी देखा है, खुदा ने इसके साथ वादे किए, इसने भी खुदा के साथ वादे किए, लेकिन जिंदगी की तब्दीली इसके बीच में नहीं थी। और यही वजह थी कि बार बार इसका मामू भी इसको चक्कर देता और ये मामू को चक्कर देता था। बराबर में चैलेंज रहे, दौलत बढ़ती गई, लेकिन एक जो कमी थी, एक जो भूख थी, एक जो प्यास थी, वो बीच के बीच ही में रही। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, पूरी उम्र लड़ते रहते हैं, खुदा से मज़ामत करते रहते हैं, इबादत भी करते रहते हैं, लेकिन पुरानी चीजें हमारे साथ साथ रहती है। पौलुस रसूल बार बार ये कहता है, कहा एक मैं कमबख्त, वो कहता है कि मैं रोज अपने आप को मारता और कूटता, वो हर रोज अपने बदन को मारता और कूटता है। उसकी जिंदगी में बड़ा तजर्बा है, उसने देखा कि बार बार जो पुरानी इंसानियत है ये सर उठाती है। हमारी जिंदगी में जो बहुत सारे फेलियर हैं, नाकामियां हैं, वो पुरानी इंसानियत की वजह से। पुरानी इंसानियत खत्म नहीं होती, तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, गैर ज़बान भी बोल लेते हैं, लेकिन पुराने काम वैसे के वैसे हमारी जिंदगी में रहते हैं। हम चेंज पर्सन नजर नहीं आते, हमारा वही तरीका वारदात होता है जो तौबा से पहले होता है। रोमन हुकूमत में और उससे पहले भी हर बंदे को फांसी ही नहीं दी जाती थी, या उनको सिर्फ सलीब ही नहीं दिया जाता था, बल्कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता था, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता था, तो ऐसा होता था कि वो कातिल जो होता था, जिसने कत्ल किया होता था, फिर एक बड़ी फर्क सी सजा उसको दी जाती थी कातिल को। और उसको सजा यह दी जाती थी कि जो मकतूल होता था, मकतूल की डेड बॉडी को कातिल के साथ बांध दिया जाता था, उसकी कमर के पीछे बांध दिया जाता था, और जब बांध दिया जाता था एक लाश को एक जिंदा इंसान के साथ, तो फिर उसे जंगलों में, बियाबानों में ये छोड़ देते थे। अब वो ना उससे जान छुड़ा सकता था, और जैसे जैसे वो डेड बॉडी पुरानी होती थी, उसकी बदबू आना शुरू होती थी, उसके साथ बांधा रहता था, और एक वक्त आता था ऐसा ऐसा वो कातिल भी मकतूल के साथ मर जाता था। और ज्यादातर ईमानदारों मसीहों के साथ यही हाल है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लेसिंग है ये रुक जाती है, बरकत रुक जाती है। नया साल आता है, 31 की रात को हम तौबा करते हैं, सारा दिन तौबा करते हैं, फिर नए साल के लिए नई इबादत करते हैं, नया करते हैं, लेकिन फिर से सारा साल
वही चैलेंज, वही मसाइल, वही परेशानियां, वही दुख, वही मुसीबतें हम उनको फेस करते रहते हैं। फिर से एक नया साल शुरू हो जाता है, एक साल खत्म हो जाता है और यूं जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है और हम छूट नहीं पाते हैं। उसकी वजह है कि पुरानी इंसानियत को हमने उतार नहीं फेंका होता है, वो हमारे साथ साथ रहती है। और यही वजह है कि हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों वो बरकत नहीं होती है, क्योंकि हमने पीछे छोड़ा नहीं होता है। बड़ी सिंपल चीजें होती हैं, हम वो ही नहीं छोड़ पाते, किसी को माफ नहीं हम कर पाते। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है किसी को माफ करना, बड़ा के मामूली काम है। किसी की हम इज्जत नहीं कर पाते, किसी को हम इंसान ही बेहतर नहीं समझते। हमने अपने हाथ में तराजू पकड़े होते हैं, हम नाप तोल करते रहते हैं। हमारी जिंदगी में फजल नहीं होता है किसी के लिए। अपने लिए फजल मांगते हैं, किसी पर फजल नहीं करना चाहते हैं। अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, किसी के लिए हम शायद कुछ नहीं कर पाते। मामूली मामूली बात पर हमारे मिजाज बिगड़ जाते हैं, खानदान के अंदर और खानदान से बाहर। बर्दाश्त नहीं होती है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। और यही वजह है कि ये पुरानी इंसानियत हमें ले डूबती है और हम उसी के साथ नए होने के बावजूद फिर से हम उसी के साथ डेड हो जाते हैं। ये असल वजह है। और हमारी लाइफ जो है ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, तब्दील नहीं होती है, लोगों को बरकत नहीं मिलती। नए साल वाले दिन मैं यह जरूर कहूंगा, अपनी जिंदगी को खुदा की बादशाहत के लिए पेश कीजिए, ताकि हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो, हमारी जिंदगी हकीकत में तब्दील, हम तब्दील शुदा लोग नजर आए, हम तब्दील शुदा लोग नजर आए। और अगर हम तब्दील नहीं हैं तो मेरे अजीज हम कुछ भी नहीं। हम खुदा से फाइट करते रहते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के साथ मेरे अजीज फाइट, जबकि खुदा हमसे मोहब्बत करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, याकूब बैतल के मकाम पर तो सो रहा था, लेकिन यबूक के गढ़ पर ये जाग रहा था और ये खुदा के साथ जाग रहा था। इसकी खुदा के साथ कम्युनिकेशन थी। ये बार बार कह रहा था कि मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मैंने तुझे जाने नहीं देना है। जब इसने कहा कि मुझे बरकत दे, मैंने तुझे नहीं जाने देना है, तो उस फरिश्ते ने कहा, उसने पूछा कि तेरा उसने क्या कहा था? मेरा नाम याकूब है। फिर से पूछा तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम याकूब है। फरिश्ते ने क्यों नाम पूछा? वो तो कोई इंसान नहीं था, वो तो एक अल्लाही शख्सियत थी, वो तो खुदा का ज़हूर था। क्या उसको नाम का नहीं पता था? नाम का तो पता था, लेकिन बीच में एक राज था, एक भेद था, उसके अंदर एहसास पैदा करना था, उसको कुछ दिखाना था शीशा कि आज से 20 साल पहले तूने अपने बाप से कहा था कि मैं याकूब नहीं हूं, मैं एसाव हूं। खुदा को ये लफ्ज सुनते सुनते 20 साल लग गए, 20 years खुदा को लग गए कि ये कहे कि मैं एसाव नहीं हूं, मैं याकूब हूं। कई बार खुदा हमसे कुछ सच्चाइयों को सुनना चाहता है, कई बार खुदा ये चाहता है कि हम सच बोलें। कई बार हम सिर्फ यही कहकर हाँ मैंने गुनाह किया, असल गुनाह की तरफ हम नहीं जाते हैं। कई बार खुदा चाहता है हम क्लियरली कहें कि मैंने ये सिन किया, मैंने ये गुनाह किया। खुदा को ये अल्फाज सुनने में 20 years इंतजार करना पड़ा, 20 साल खुदा को इंतजार करना पड़ा। खुदा इसके साथ रहा, खुदा के बाद इसके साथ रहे। खुदा ने जिस्मानी चीजें इसको दी,
बीवी बच्चे भी दे दिए, लेकिन उसके बावजूद खुदा एक लाइन का इंतजार कर रहा था कि एक वक्त आए कि याकूब कहे कि मैं इसौ नहीं हूं, मैं याकूब हूं। ये कहे कि मैं धोखेबाज हूं, मैंने बाप को धोखा दिया, मैंने भाई को धोखा दिया, मैंने फलां को धोखा दिया, मैंने उसको चीट किया, मैंने उसको चीट किया। कई बार कुछ लाइनें खुदा हमसे सुनना चाहता है। कई बार हमारी जिंदगी में हिडन सिंस होते हैं, गुनाह होते हैं, और यही वजह है हम आगे नहीं बढ़ पाते। याकूब ने जब यबूक के मुकाम पर खुदा के साथ वक्त गुजारा है तो उसे ये समझ आई है ये जानवर, ये नौकर, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये कोई खास बरकत नहीं है। उसको समझ आ गई है। कई बार हम कह सकते हैं कि ये पार्शली कुछ बरकत का हिस्सा है, बट नॉट 100%। सब कुछ ये चीजें नहीं है। याकूब को उस वक्त समझ आई जब ये खुदा के साथ था, जब ये तन्हाई में वक्त गुजारा। पहले शायद उन्हीं पेड़ बकरियों के लिए मामू को धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, पार कर करके अमेरिका में, यूके में बहुत सारे हमारे एशियन लोग इतना फ्रॉड करते हैं, इतना फ्रॉड करते हैं, इतने बेनिफिट लेते हैं, डिसेबिलिटी लेते हैं, बेरोजगारी का अनाउंस लेते हैं, बच्चों के फंड लेते हैं, बेवा का फंड लेते हैं, तलाकों का फंड लेते हैं। इन्ना गोरियां नु चक्कर दिता है, गोरियां ने तो पता नहीं अखा बंद है। इतना फ्रॉड करते हैं ना अपनी धन दौलत बनाने के लिए। और यही वजह है कि इतने आके सारे महालता मुरब्बे खरीदे ने, उसे फ्रॉड करने होते। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग अदर नेशंस के इतना फ्रॉड करते हैं। यूके में इन्होंने इतना फ्रॉड की है सिर्फ अपनी जायदादें बनाने के लिए। याकूब भी शायद उसे जानवर तो बना लिए, लेकिन एक खाना खाली था, एक रखना था जहां पर वो समझ रहे कि ये कुछ नहीं है। ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये मर्सिडीज, ये वाल्वो, ये बंगले, ये डॉलर्स, ये पाउंड, ये कुछ नहीं है। जब खुदा के साथ उसने गुजारा है तो वो समझ रहा कि ये कुछ नहीं, ये खाक और राख है। उस बरकत को अब वो कुछ नहीं समझ रहा। क्यों लेवल तब्दील हो गया है खुदा के साथ, उसकी सोच बदल गई है, बरकत का मफ़हूम बदल गया है उसके सामने। अब वो बरकत टाइटल नहीं समझ रहा, वो बरकत जायदाद नहीं समझ रहा। अब उसकी बरकत जहन में कुछ और है, अब कुछ और उसके जहन में। अब चीजें तो हैं कि बंदा छड़ा गया है तो चार चार बुढ़िया हो तो खुश तो होना चाहिए कि एक ही जाने ना किसी ना हो तो 12 जाने हो जान, एक नौकर भी ना हो तो नौकर की लाइन लगी हो। कितना कुछ है, अब तो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब खुदा के साथ वक्त गुजारा है तो समझ आ गया ये खाक और राख है, मुझे कुछ और चाहिए खुदा से। इसलिए बार बार पकड़ लेता है, बार बार लगता है ये प्यारी पै जाना होना, ये प्यारी पै जाना होना। एक पकड़ लेता होता बाज, पकड़ लेता होता टांग को, मैंने नहीं तुझे जाने दिया, कुछ करके जाना है मेरे लिए, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मुझे समझ आ गई है ये चीजें कुछ नहीं है। इसलिए उसे कहा गया अच्छा अगर बरकत लेनी है तो चल फिर असल जगह पे आ जा, असल मकाम पर आ जा, असल गल कर, करार कर। और इससे पूछा गया तेरा नाम क्या है। 20 साल पहले इसके बाप ने उससे पूछा था तेरा नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम साऊ है। लेकिन 20 सालों के बाद ये फिर ये फरिश्ते से कह रहा है मैं साऊ नहीं हूं, मैं याकूब हूं, मैं धोखेबाज हूं। मैंने बड़े चक्कर दिए, मामू ने चक्कर दिता, अब्बे ने चक्कर दिता, सारे ने चक्कर दिता, बट आई कन्फेस, मैं इकरार करता है। यही बरकत का राज है, यही बरकत का राज है। आई कन्फेस, यही बरकत का राज।
अगर आप जिंदगी में 25 में बरकत चाहते हैं ना, तो यही राज है। स्पेंड टाइम विद गॉड लोनली, खुदा के साथ वक्त गुजारे। खुदा उस पर रिवील हुआ है, खुदा ने अपने मुकाशफा दिए। जब खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, फिर वो हमारे अंदर एहसास पैदा कर देता है, हमारी अंदर की आंखें खोल देता है, हमारी सोच तब्दील हो जाती है, हमारे ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, और फिर हमें किसी से माफी मांगने और किसी को माफ करने में देर नहीं लगती है, अपनी कमजोरियों के इकरार करने में देर नहीं लगती है, ठीक राह पर चलने में देर नहीं लगती है। इसलिए इसने अपने आप को तब्दील किया, और फिर फरिश्ता उसे कहता है, आज से तेरा नाम याकूब धोखेबाज, चक्करबाज, फ्रॉडिया नहीं होगा। आज से तेरा नाम क्या होगा? तेरा नाम, दो तीन मतलब इसके निकलते हैं। इसराइल का मतलब है खुदा का शहजादा। क्या मतलब है? और इसका यह भी मतलब निकलता है खुदा के साथ मिलकर हुक्मरानी करने वाला, खुदा के साथ मिलकर हुक्मरानी करने वाला। और इसका यह भी मतलब है वो जो खुदा के साथ जोर आजमाई करता है, वो जो खुदा के साथ जोर आजमाई करता है। और फिर वहां पर लिखा है कि जब ये कुश्ती कर चुका, जब ये सारी गुफ्तगू हो गई, और फिर जब ये अब लंगड़ा कर चाह रहा है, लंगड़ाने का मैंने पहले बता दिया, उसका पर्पस यही था ताकि ये अपने ऊपर फख्र ना करे। मैं बड़ी दुआ करना, सम टाइम कई लोग अपने दुआ रोजे पर बड़ा फख्र करते हैं। दुआ और रोजा बड़ी करनी चाहिए, जितनी भी खुदा हमें तौफीक दे करे, लेकिन इस पर फख्र मत करें। हमारा फख्र सिर्फ खुदा होना चाहिए, भरोसा हमारा खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रूह कुदस पर होना चाहिए। हमारा भरोसा हमारी राइटनेस पर, हमारी रास्तबाजी पर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद फरिश्ता भी चला गया, इसको बरकत भी मिल गई, इसका नाम भी। तो फिर ये लंगड़ाता हुआ फिर चल रहा है, फिर लंगड़ा रहा है, ताकि इसे याद रहे कि ये खुदा ने मुझे छुआ। हालेलुया, खुदा ने मुझे छुआ है। ये भूले, इस इनकाउंटर को भूले मत। जब तक ये जिंदगी है, ये याद रखे कि इसकी मेरे साथ मुलाकात हुई थी, ये याद रखे कि मैंने इसे बरकत दी थी। और फिर लिखा है जब सब कुछ हो गया और फिर से सूरज तुलू हो रहा था, द न्यू बिगिनिंग। हालेलुया, एक नई शुरुआत होगी, एक नई विक्ट्री, एक नया सफर, एक नई फतह, एक नई दुनिया, एक नया होप, एक नई इरादे, एक नया गोल। जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, आपकी जिंदगी में चीजें नई होना शुरू हो जाती है, चीजों का जोर मिलना शुरू हो जाता है, द न्यू बिगिनिंग हो जाती है। जब खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, आपका सब कुछ तब्दील हो जाता है। हालेलुया, आइए अपनी जगह पर खड़े होते हैं। हालेलुया।